आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरी जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह की जय क्यों करते हैं? Why we hail the Lord? क्योंकि वो मुर्दों में से जीवित हुआ है। Because he risen up from the इस dead. दुनिया में बहुत सारे लोग आए और चले गए, There so many came and go. वो मारे गए, गाड़े गए, They died and they buried. पर कोई भी तीसरे दिन जिंदा नहीं हुआ। But no one rose from the dead on the third day. अगर आप डीप स्टडी में जाएंगे If you go into the deep study, तो प्रभु यीशु मसीह के जिंदा होने के बहुत सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। there are a lot of proofs of the resurrection of Jesus. क्योंकि जब कोई घटना किसी जगह पर होती है, Because when something happens somewhere, वहां पर उसके प्रूफ जरूर होते हैं। there must be some proof of that thing. दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जहां पर आग लगती है धुआं जरूर उठता है। In other words, I would say that where there is the fire, there are fumes. और प्रभु यीशु मसीह अगर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं तो छोटा काम नहीं है। And this is not the little thing that if Jesus has rose up from the dead on the third day, वो जिंदा हुए हैं he has risen up. और उनके जिंदा होने के प्रूफ आज भी इजराइल देश में मौजूद हैं। And the proof of his risen up is now available in the Israel. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। I praise to the Lord. यूएसए और कनाडा के टूर के बाद आज मैं पहली बार राजपुरा चर्च में आया हूं। After the USA and Canada tour, today first time I am among you in the Rajpura और church. आप सबको देखकर दिल को बड़ी खुशी हो रही And है I am very much glad to see you. कि मेरे बहन और भाई प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने में मगन हैं। That my brothers and sisters are so much seeking the worshiping of God. क्योंकि जब आप प्रेरितों के खत में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों में पढ़ते हैं, When you read in the Acts and the letter of Corinthians, तो पौलुस कई जगह पर निराश हो जाता है, and Paulus see his grief at many places. कई जगह पर कलीसिया से उदास हो जाता He है, show his griefs through the many places. कई जगह पर कहता है कि जब मैं तुमसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मसीहों से नहीं मिल रहा हूं। He was saying that when I met you, I don't see that I am meeting a Christian. पर आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं But today I'm so happy कि जब मैं आपके बीच में आया that when I came among you, तो मैं आप सबके बीच में आकर उदास नहीं हुआ I हूं। was not disagree with you. मैं आप सबके बीच में आकर सैड नहीं हुआ हूं, I was not sad when I came among you. क्योंकि आप सब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, Because you are filled with Holy Spirit. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। Because God has chosen you. जो चुने हुए हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, And those who are chosen are present here. जो बुलाए गए हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, Those who are called are present here. जो यहाँ पर चुने हुए हैं वो बैठे हैं, Those who are chosen are present here. जो चुने हुए नहीं थे Those who are not chosen, वो इस संगति के काबिल नहीं बन they पाए, were not worthy to be this पर जो congregation. चुने हुए हैं But those who are chosen, उनको परमेश्वर अपने बेटे और बेटियां कहता है। and God regard them as their sons and daughters. हालेलुया। Hallelujah. टीचर एक इंग्लिश का शब्द है Teacher is a word comes from English language, और इसकी हिंदी की ट्रांसलेशन है गुरु। and its Hindi translation is guru. जोर से बोलें गुरु। Speak loudly. आज किन का दिन है? आज गुरु का दिन है। Today is the day of your gurus. आज टीचर का दिन है। Today is the day of your teacher. वो लोगों का दिन है, And to those people, वो लोग जो हमें प्रतिदिन सिखाते हैं। those people, they're continuously guiding and teaching us. हम स्कूल में पढ़ते थे तो वहां पे भी हमारे टीचर हुआ करते When we थे। were reading in the school, there were teacher of us. आप जब किसी जगह पर अपना काम सीख रहे थे तो वहां पर भी कोई गुरु था जिसने आपको उस काम को सिखाया है। There must be a teacher when you are learning something new in your workplace. अगर किसी ने किसी मैकेनिक का काम सीखा तो वहां पर भी उसका एक गुरु था। If anybody has learned the work of mechanic, there must be a teacher of आपको बनाने के लिए एक गुरु की जरूरत है। you. For making you, there must be needing a guru. आपको बनाने के लिए एक टीचर की जरूरत है। To make you, you need a teacher. पर इस दुनिया के टीचर्स आपको कुछ वक्त तक टीचिंग दे सकते हैं। But the teachers of this world can teach you for some time. हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे अपना गुरु मानते हो, It might be possible that some of you is considering me as your अपोस्टल जी guru, को अपना गुरु मानते हो, considering Apostle ji as your guru. हम अपने फादर साहब को अपना गुरु We मानते हैं। consider Father Sahib our guru. गुरु का मतलब क्या है? What is the meaning of teacher, guru? अगर आप सोशली देखेंगे, सामाजिक तौर पर देखेंगे, If you see socially, तो गुरु का मतलब है अंधेरे से निकालने वाला। the meaning of the guru that who bring you out from the darkness. गु का मतलब है अंधेरा And the word gu means darkness. और रू का मतलब है रोशनी। And the word ru means light. गुरु का वो मतलब नहीं जो हम समझते हैं, And that is not the exactly meaning that we see in our hearts. पर परमेश्वर का वचन हमें आज गुरु के बारे में कुछ इस तरह से सिखाता है But what the word of God is teaching us today, the meaning of guru, कि इस दुनिया में गुरु कुछ समय तक रहते हैं। there must be some duration of any guru in this world. उस वक्त तक जब
आप उनसे सीखते हैं, And at that time, when you get teaching from him, लेकिन इस दुनिया में एक परफेक्ट गुरु हुआ है। but there is one perfect teacher in this world. आज के गुरुओं की बात करूं, I'm talking about, if I talk about today's gurus, कुछ गुरु अपने शिष्यों को अपने शिष्यों की तरह समझते हैं, and some they consider their students as their students, पर कुछ गुरु अपने स्टूडेंट से बहुत सारी फीसेस भी लेते हैं। and some charges plenty of fees from their students. बहुत सारे गुरु इस तरह के मैंने देखे जो पढ़ाते पढ़ाते गलत शिक्षा देने लग गए। And I saw a lot of cases where they are wrong teaching to their बहुत students. सारे गुरु मैंने इस तरह के देखे जिन्होंने जिनको पढ़ाया उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप कर ली। And I lot of cases where teacher be in the friendship with their students. ऐसे गुरु देखे जिन्होंने अपने ही कॉलेज की लड़कियों के साथ शादी कर And ली। they get indulged in the relationship with their own students. लेकिन एक ऐसा गुरु हुआ But there is one guru जिस गुरु ने अपनी आंख से पाप नहीं किया, that he does not commit sin with उस his गुरु ने eyes, अपने हाथ से पाप नहीं किया, did not committed sin with उस hand, गुरु ने अपने दिमाग से पाप did नहीं not किया, commit with conscience, उसने अपनी सोच से पाप नहीं did not किया, commit with thinking. वो उत्तम गुरु बना, He is the perfect. वो परफेक्ट गुरु बना, He is the perfect. वो परफेक्ट टीचर बना, He became the perfect और उस teacher. गुरु का नाम प्रभु यीशु मसीह And है। that teacher's name is Jesus और जब वो Christ. गुरु किसी को सिखाता And है when that Jesus Christ teaches तो anybody, पाप उस स्टूडेंट की जिंदगी को छोड़कर then निकल there is जाता no है, room for the sin in that student's life. लालच स्टूडेंट की जिंदगी को छोड़कर Then निकल the greed जाता is है, not a part of that student's कमजोरियां life. स्टूडेंट की जिंदगी को छोड़कर निकल Weakness is जाती not है। a part of that life. बहुत सारे लोगों ने आज अपने गुरुओं की फोटो लगाई, A lot of people set their images of उनके their स्टेटस gurus डाले, and put the status of them. मेरे यूथ के बच्चों ने भी मेरे बहुत स्टेटस डाले, And my youth have made my status. लेकिन मैं आपको बताना चाहता But हूँ, today I want to tell you, हमें आप गुरु समझते हैं, अच्छी बात if है, you consider us guru, this is good. लेकिन आपका सबसे बेस्ट और परफेक्ट गुरु प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। But I want to say your best and perfect teacher is the Jesus Christ and the Holy Spirit. जब आप होली स्पिरिट से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, When you ask to the Holy Spirit that please guide me what to do, तो वो आपको बताएगा कि क्या करना है, He tells you that what to do. पर सवाल ये है, But the question is, क्या आपके पास आपका गुरु है? do you have your teacher? कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं How कि many of you पवित्र believe? आत्मा आपके अंदर है? How many of you believe that Holy Spirit is inside you? बहुत अच्छी बात है। It's very good. मैं आज यहाँ पर आया, I came here today. मैंने यहाँ पर पवित्र आत्मा की मौजूदगी को महसूस I किया। felt the presence of Holy Spirit here. जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां आराधना कर रहे When थे, the sons and daughters were worshipping Lord, मेरा नाचने का दिल कर रहा था, I was having the mind to मेरा dance. हाथ उठाकर प्रार्थना करने का दिल I कर was रहा having the था, mind to pray. मेरा तालियां बजाने का दिल कर रहा I था, was having a mind to clap. क्योंकि मुझे पता है कि गुरु इस जगह पर है Because I know that our teacher और is उसका here. नाम पवित्र आत्मा And है। his name is Holy Spirit. मैं बात कर रहा था I was talking कि दुनिया के गुरु में that the teacher of this और world आत्मिक गुरु में बहुत फर्क है। and spiritual teacher has a lot of difference. दुनिया के गुरु की शिक्षा में कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हो सकता है, There must be a selfishness in the teaching of today's world gurus. पर जिस गुरु की आप बात कर रहे हैं, And but we are talking about a guru, जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, and I talking about a guru, टीचर, teacher, जिस गुरु की मैं बात कर रहा हूँ, and the teacher I'm talking about, वो नॉर्मल नहीं है, he's not normal. वो जीवित परमेश्वर है। He is a live God. वो ऐसा गुरु है He is जो a teacher. दुनिया से हटके है। He is very different from this world. हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. एक वचन मेरे साथ पढ़िए, I want you to read with me मरकुस की अंजील the book of Mark, उसका 10 अध्याय is chapter 10. उसके 17 वचन में हम पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। We will read its verse 17, chapter 10 of Mark. यस, प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हैं? Are you happy today? जो खुश है अपना एक हाथ खड़ा करके दिखाएं। If you're happy, raise your only one hand. जो उससे भी ज्यादा खुश है वो दोनों। If you are so happy, then raise your both hands. जो उससे भी ज्यादा खुश है एक बार हंस के दिखाइए। Please give a smile if you're more than happy than that. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूँ, I sometimes think this thing, जब तक आप टेस्ट में से होकर ना निकलें, until you not passing through a test, जब तक आप हार्ड वर्क ना करें, until you do not go through a hard work, तब तक आपको फल खाने का आनंद नहीं आता है। you will not enjoy your fruit until that. ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं Not a person here जो बिना पसीना बहाए खाना खा सके। who did not work hard but have meal. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं There is no children here. जो बिना रोए अपनी माँ से दूध ले सके। He is not getting meal without
crying. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो लिट लिट कर चीजें ना मांगता हो। He is crying and asking the things. पहले मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मेरी 3 साल की बेटी, अब मुझे अच्छे से पता है कि कैसे लिट लिट के चीजें मांगी जाती First हैं। I was not aware of it, but now I have 3 years daughter. Now I know. वो बिटर जाती है, He was crying brutally. वो बिटर जाती है कि मुझे यही चाहिए। He was crying brutally and saying, I want this. शायद उसके दिमाग में ये चल रहा हो, मेरा पापा अमेरिका से आया है, She must have in his mind, in her mind, ये मुझे दिला सकता है। she must have a thought that he can afford everything because नहीं he नहीं came from नहीं, ऐसा America. कुछ भी नहीं है। Nothing like that. हर एक के बच्चे सेम होते हैं। Everybody has a उनका same kid. पिता चाहे लैंडलॉर्ड हो या गरीब हो, Regardless of the status of his father, पर उनकी इच्छा ये होती है कि उनका पिता दुनिया का सबसे बेस्ट पिता है। their only wish is that his or her father is the उनकी world best माँ father. दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। Their mother is the world best mother. जो कुछ भी वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, Whatever they were expecting from them, वो उन्हें प्रोवाइड करने की ताकत रखते हैं। they have the ability to provide. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे लोग, मैं आत्मा में फील कर रहा हूं, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो अपने आप को कमजोर महसूस A करते lot हैं, of you are considering themselves weak. I can see in the अपने spirit. आप को गरीब महसूस करते They हैं। are considering themselves poor. लेकिन एक बात याद रखिए, But keep this thing in your mind. आप वो व्यक्ति हैं You are the person. जो इस दुनिया में ऑलरेडी जीत कर आए हैं। You have already won in this world. Then you came here. आपको पता है कि जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है You know when mother conceives, और उसके पिता का, यानी कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, उसके पिता का स्पर्म जब वोम में जाता है, when sperm enter into the womb, और उस स्पर्म में लाखों ही सेल्स होते हैं जो अपनी जगह उस ओवरी में, उस वोम में ढूंढते हैं। the million and trillion of sperms were finding their place in that ovary. ढूंढते ढूंढते लाखों सेल्स खत्म हो जाते हैं। And all those sperms are diminishing on the way. उस जगह को, प्रेगनेंसी को पूरा करने के लिए ढूंढते ढूंढते लाखों स्पर्म खत्म हो जाते हैं। They're destroyed on the way to the ovary when they are finding the way. उनमें से एक ही ऐसा स्पर्म होता है जिसमें जान होती है और वो जाकर मां की कुख में ठहर जाता And है। only one sperm that get entered into the ovary, जिसमें जान होती है, that he is alive, जो जीत जाता है, who is won क्योंकि वो एक फाइट होती है because he fought a fight और वो उस फाइट में जीत जाता and है। he won that fight. वो मैं और आप हैं। That is me and हम you. पहले से ही फाइट जीत कर आए We हैं। won the fight from the हम very पहले beginning. से ही फाइट जीत कर आए We हैं। won the fight from the very तो beginning. आप अपने आप को हारा हुआ नहीं कह Do सकते not हैं। consider yourself आप as अपने आप को गिरा हुआ नहीं कह सकते don't हैं। consider yourself as a जब fallen आपने loser. अपनी पहली लड़ाई आपके माँ के पेट में जीत ली है, When you won the fight in the womb of your mother, तो आज भी जो लड़ाइयां आप लड़ रहे हैं, अगर आपका गुरु पवित्र आत्मा आपके साथ है, तो आज आप जीतेंगे यीशु मसीह then के you will समर्थी win नाम से। every fight when your guru is with you, when your teacher is with you. हालेलुया। Hallelujah. मैं कोई बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, I'm not a good speaker. मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं I'm हूँ, not a good teacher. मैं इतने का नोट्स बना के लाया हूँ, I have just made this much of notes. मैं इतना लिख के लाया हूँ, I have just written this और much. इसमें भी कोई बातें नहीं लिखी हुई हैं। And not any big thing. यहाँ पर सिर्फ बाइबल के वर्स लिखे हुए Only हैं, Bible verse written there. जहाँ पर जो भी बोल रहा है The person who is speaking here, मेरा गुरु बोल रहा है, my teacher, और उसका नाम पवित्र आत्मा and है, his name is उसका Holy नाम प्रभु Spirit. यीशु मसीह है। And his name is जब Jesus आपके Christ. अंदर आपका गुरु बोलना शुरू हो जाएगा, When your teacher starts speaking inside जब you, आपके अंदर आपका गुरु बोलना शुरू हो when जाएगा, your teacher starts speaking inside आपकी you, लैंग्वेज बदल जाएगी your चर्च, language will be changed. आपका स्वभाव बदल जाएगा Your चर्च, nature will be changed. आपका कैरेक्टर बदल जाएगा Your चर्च, character will be changed. आपका उठना बैठना बदल जाएगा Your चर्च। sitting and walking will be मैं changed. बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, I met so many people. मैं बहुत सारे लोगों को परखता हूँ, I test so many people क्योंकि मैं उन पर मेहनत करता हूँ, because I do my hard work on पर जब them. मैं उन्हें मिलता हूँ, But when I meet them, कुछ लोगों से मिलकर मैं बहुत खुश होता हूँ, with somebody I meet, I so rejoice to लेकिन meet. कुछ लोगों से मिलकर मेरा भी रूह ठंडा हो जाता है, But I become sad to meet some of पर them. मैं गिव अप नहीं करता, But I never give up क्योंकि मुझे पता है because I know क्लास में कुछ स्टूडेंट बड़े इंटेलिजेंट होते there हैं, are some students in the class who are लेकिन intelligent. कुछ स्टूडेंट कमजोर होते हैं, But
weak also. पर इसका मतलब ये नहीं कि टीचर उन्हें छोड़ दे। But it doesn't mean that teacher will forsake them. टीचर उन्हें छोड़ दे जो कमजोर हैं। Teacher will not forsake who are आज आप में weak. से जो भी कमजोर है, And today among you who are weak, मैं उसको सबसे पहले पकड़ूंगा। I will hold him. पवित्र from the आत्मा back. उसको सबसे पहले पकड़ेगा। Holy Spirit will hold him. गुरु उसको सबसे पहले पकड़ेगा। Teacher will hold him. दुनिया के टीचर कहते हैं तू माता का माल है। Worldly teacher will say to you that you are मैं जब rubbish. स्कूल में जाया करता था तो जो नलायक स्टूडेंट होते थे उन्हें पीछे बिठा दिया जाता When था। I used to go to school, the weak student was used to sit beside. मैं कई बार अपनी क्लास का मॉनिटर रहा I used to be the monitor of my और मेरे class. टीचर मुझे कहते थे कि जो नलायक हैं उनको पीछे कर दिया My करो। My teacher used to say that who are weak, please call them to sit to the backside. ये माता दा माल है। They are rubbish. पर मैं आपको बताना चाहता But I हूँ, want to say you, चाहे कोई अनपढ़ है, if anybody is चाहे illiterate, किसी को पढ़ना नहीं आता, who do not want to चाहे बहुत इंटेलिजेंट है, who is intelligent, जब आप पवित्र आत्मा की क्लास में बैठते हैं, when you sit in the जब आप class of यीशु के Holy स्कूल Spirit, में बैठते when हैं, you sit in the जब school आप of पवित्र Jesus, आत्मा के स्कूल में when you बैठते sit in हैं, the school of Holy वो Spirit, नलायकों को नहीं देखता, He does not वो see your इंटेलिजेंस better. को नहीं देखता, He does not see your वो intelligence, पढ़े लिखों को नहीं He does देखता। not see your literacy. वो कहता है कि He says, मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर I सकूं। have chosen the fool of this world so that I can make the intelligent foolish. फिर उदासी किस बात की है? Why are you sad then? उदासी किस बात की Why है? are you sad then? एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। Give a good smile to me. कहीं मुझे प्रभु ने चुना है, Say that God has chosen मुझे me. मेरे गुरु ने उठाया है Say that my God has lifted और me up. आज से मैं कमजोर नहीं And I हूँ। am not weak from बोले today. बोले बोले आज से मैं Say, कमजोर say, नहीं हूँ। I am not weak. आज से मैं तकड़ा हूँ यीशु मसीह I के am नाम से। strong in the name of आज Jesus. से मैं तकड़ा हूँ यीशु मसीह के I नाम am strong से। in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोले आमीन। Amen. यहाँ पर क्या लिखा है? What is written here? यहाँ पर लिखा है कि जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था And when he was gone forth into the way, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया there came on running and kneeled to him. और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, And kneeled to him and asked, हे उत्तम गुरु। Good master. गुरु बहुत हैं There are a lot of masters, पर उत्तम गुरु को ढूंढना बहुत ज्यादा but मुश्किल it's है। very difficult to find a good master. सोशल मीडिया के ऊपर On the social media, बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। a lot of people are being distracted. मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं हूँ, I'm not targeting any pastor. मैं किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं I'm हूँ। not targeting any ministry. उनका दर्शन कुछ और हो Their सकता है, vision is different. पर मेरा दर्शन धरती से लेकर आसमान तक का है। But my vision is from the earth to the heaven. मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता I हूँ, pray for them too. पर मैं इस बात को बहुत डीपली सोचता हूँ But I think this thing too deeply. कि उत्तम गुरु का होना बहुत जरूरी It's है। very important to be with your good master. सिर्फ गुरु होना काफी नहीं It's है, not enough that master is with you. गुरु तो दुनिया में भी बहुत ज्यादा हैं। There are a lot of gurus in the world. वो व्यभिचार भी करते हैं, They are adultery. वो बुरा सोचते भी हैं, They think filthy. वो बुरा बोलते भी हैं, They use filthy कई language. तो अपने चेलों को गालियां निकाल Some of देते them हैं। abuse their उन students. सारे गुरुओं के बारे में बाइबल हमें एक तरफ सिखाता है, लेकिन उत्तम गुरु के बारे में बाइबल हमें एक तरफ सिखाता है। Bible teaches us very differently from that guru who has involved and teaches us very differently about the good master. यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ा दौड़ा आता है। A person came and kneeled to the Jesus. बहुत सारी जगहों पर जब आप पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर दौड़े दौड़े लोग आए हैं। You will read a lot of incidents in the Bible that अब- when a person came and kneeling to him. अब ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे उत्तम गुरु। And that person came to Jesus and said, "Oh, good master." सवाल ये है This is the question. कि उसने प्रभु यीशु मसीह को गुरु नहीं कहा, He does not call only master. उसने कहा हे उत्तम गुरु। He said, "Oh, good master." जब आप उत्तम वर्ड को बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं When you read very deeply the word good, तो वहां पर एक शब्द निकल कर आता है, there is a word came out. उसका है प्योरिटी। That word which is came out from that is purity. प्योरिटी, Purity. खालस, Holy. जिसमें कोई मिलावट नहीं है। There is no any impurity in that. जोर से बोले जिसमें कोई मिलावट नहीं है। Speak loudly. बहनें बहनों से कहें, भाई भाइयों से कहें, उत्तम का मतलब है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। Good mean which added no impurity. और यहाँ पर लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह से आकर पूछता है, हे उत्तम गुरु। That is written that he asked, "Oh, good master." अब उत्तम गुरु से कौन सी बात पूछी जा सकती है? What shall be asked to a good master? उत्तम बात, Good thing.
उत्तम बात good thing जो किसी के पास भी नहीं है। that you will find with nobody else. हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. और यहाँ पर क्या कहते हैं? What is written here? हे उत्तम गुरु, Oh, good master, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? what shall I do that I may inherit eternal life? मेरे गुरु थे I have a lot of जिन्होंने मुझे teachers. पैसा कमाना सिखा दिया। They taught me how to earn money. मेरे गुरु हैं I have teachers. जिन्होंने मुझे बहुत सारी बातों में सक्षम बना दिया। They made me able in so many things. पर उन सभी गुरुओं के पास जाने के बाद भी मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि मैं अनंत जीवन की प्राप्ति कैसे कर सकता But हूं। after going to them, nobody taught me that how shall I receive the eternal life. और जब मैंने आपके बारे में सुना है, But when I heard about you, जब मैंने यीशु के बारे में सुना है, when I heard about the Jesus, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया this है, thing comes in my mind. एकदम से मेरे माइंड में आया This है thing comes in my कि mind जो परमेश्वर इस दुनिया में है, that the Lord which is in this world, जिसने आकर शादी नहीं की है, who did not get married, जिसने आत्मिक बातों को बताया है, he taught very spiritual things. उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया है। He made life to the 4 days dead उस body. गुरु ने, उस उत्तम गुरु ने अंधों की आंखों को खोल दिया He है। made the blind seen. अगर मैं If I दुनिया के गुरुओं के पास जाऊंगा, If I go to the teacher of this world, मुझे पैसा मिल सकता है, I may get money, मुझे बहुत सारे डॉलर पाउंड मिल सकते हैं, I may get dollar and वो मुझे pounds. तरीका बता सकते हैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, They can teach me the ways to increase my business. लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि अनंत जीवन को कैसे पाना But है। they cannot teach that how to receive the eternal वो life. ये नहीं कह सकते कि आपको स्वर्ग में कैसे जाना है। They cannot teach that how you get entered into the heaven. लेकिन ये आज यीशु मसीह के पास आया है, But today he came to the Jesus. बहुत ज्यादा घूमने के पास यीशु के पास आया है, After hovering about so many things, he came to Jesus. घूम घूम कर थक चुका He होगा। came to so many teachers. और बाइबल बताता है And Bible says, यीशु के पास आकर इसने एक ही सवाल किया, only one thing he asked to Jesus. हे प्रभु यीशु मसीह, Oh, good master Jesus. हे उत्तम गुरु, Oh, good master. अनंत जीवन पाने के लिए How shall I receive eternal life? मैं क्या करूं? What can I do to receive eternal life? सब बोले मैं क्या करूं? Everybody say, what shall I do? तो आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? Do you know that what Jesus replied? पढ़ते हैं। Let's read. यीशु ने उससे कहा, Then Jesus said unto him, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? why callest you me good? अब इस जगह पर उत्तम गुरु का पहला गुण देखिए। Now we can see the first characteristic of a good वो teacher. उत्तम होने के बाद भी अपने आप को उत्तम नहीं कह रहा है। He humbled himself, whether he was big, he was good, but he did not consider him हो good. सकता है आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा, It might be possible that you read this word so many लेकिन times. पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर इस रेवलेशन को रिवील नहीं किया होगा। But Holy Spirit did not reveal this thing upon you. फादर साहब इस जगह पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह उत्तम होने के बाद भी क्या कह रहे हैं कि तू किसे उत्तम कह रहा है भाई? Even Jesus was good master, but again he was तू asking, मुझे why you are calling me उत्तम good? क्यों कहते हैं? Why you calling me good? और आपको पता है कि इस दुनिया के गुरु क्या कहते हैं? Why do you know that? मेरे घुटने दबाओ, Press my knees. मेरे घुटने दबाओ, Press my knees. मुझे पैसे चढ़ाओ, Give me money. मुझे मुर्गे दे दो, Give me the. मुझे बलियां दे दो, Give me the sacrifice. मुझे ये भी चाहिए I want this क्योंकि मैं तेरा गुरु हूँ, because I'm your teacher. मैं तेरा टीचर हूँ। I'm your teacher. जबकि वो उत्तम नहीं है, Whether they are not good, वो एक सिंपल इंसान है। they are only simple human beings. उन्होंने किसी को चंगा नहीं किया They है, did not heal anybody. उन्होंने किसी के लिए मेहनत नहीं की They है। did not hard work for anybody. वो गुरु कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं। They saying and considering themselves superior. इस दुनिया के गुरु कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा सुपीरियर And the हैं, teacher of this world says they are superior. पर जो उत्तम गुरु है वो कह रहा है कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता But है? see, a good master is asking, why you call me good? यहाँ से आपको एक बात सीखने को मिलती है चर्च। You can learn one thing from here. आपके गुरु यीशु से आपको बात सीखने को मिलती You है। can learn from one thing, your teacher आप Jesus Christ. कितने भी मर्जी बेस्ट क्यों नहीं बन जाते? You might be so best in your life. आप मेरी तरह कनाडा अमेरिका क्यों नहीं चले You can जाते? go American Canada like me. आपके पास कितने भी पैसे क्यों नहीं You might हैं? have so many pleasures and पर money. अगर आप उत्तम भी बन गए हैं, But if you become a good, तब भी आप ये कहें कि मैं यीशु मसीह से नीचे ही हूं, मैं अभी तक उत्तम नहीं बना हूं। then you have to say that I am inferior to Jesus Christ. I am not good. यहाँ पर इस वचन में ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह उत्तम नहीं है। It's not
like that Jesus was not good. पर वो हमें एक नमूना दे रहा है, But वो he's हमें giving एक an example. एग्जाम्पल दे रहा है कि आपको जब कोई कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत परफेक्ट हैं, आप बहुत अच्छे पास्टर हैं, तब आपको भूल नहीं जाना है, तब आपको सर पर नहीं चढ़ जाना है, तब आपको कहना है आई एम नथिंग, माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज माय एवरीथिंग. हालेलुया. Jesus Christ here is advising to us that you do not be haughty when somebody call you, you are good. You have to be humble. हालेलुया. Hallelujah. उसने क्या कहा? What he said. तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? Why you call me good? उत्तम तो सिर्फ परमेश्वर है. Only God is good. जोर से बोले हालेलुया. Hallelujah. उत्तम तो सिर्फ परमेश्वर है. Only God is good. इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा नहीं थे. It doesn't mean that Jesus was not वो God himself. वो खुद परमेश्वर हैं, He was God himself. पर उस वक्त वो परमेश्वर की इमेज में नहीं है. But at that time he was not in the image of God. उस वक्त वो इंसानी जन्म में है. He was in the body of a human. और इंसानों को कैसे जीना चाहिए, And how to live. इंसानों को human. कैसे रहना चाहिए, And how to live like a human. आज एक गुरु अपने शिष्यों को बता रहा A है. teacher is teaching to their students. जोर से बोले आमीन. Hallelujah, amen. आगे क्या लिखा है? What is written? अब आपको पता चल गया प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि उत्तम मत कहो. Now you know that why Jesus said that you don't call me good. आप मुझे बताइए क्यों कहा. You tell me that why he called so. ताकि हम में से कोई परफेक्ट होकर फूल ना जाए, That's we have to not pride if we are good. ताकि हम में से कोई बेस्ट होकर ये ना कहे कि मुझसे अच्छा कोई भी नहीं है. Even being best, we do not have to say that nobody is good than me. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you one thing. आपको अच्छे परमेश्वर की नजर में होना है. You have to be in the sight of a good ना God. आप दुनिया को कभी खुश कर पाए थे और ना कर पाएंगे. You can never people happy and you will never be able to make them happy. मैं आपको बता रहा हूँ, ना आप कभी दुनिया को खुश कर पाए थे और ना आप कभी दुनिया को खुश कर पाएंगे, पर आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने परफेक्ट होना है, उसके सामने उसके अच्छे चेले बनना है, उसके सामने उसके अच्छे शिष्य बनना है. तब आपके परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे अनंत जीवन का वरदान दूंगा. You just have to make your God pleasure. You just have to be a good man in the sight of your Lord. अब इस व्यक्ति ने यीशु से आकर क्या कहा? And what this person called to Jesus. बहनें बोली, इस व्यक्ति ने यीशु से आकर क्या कहा? Sister said that what he called, what he said. हे उत्तम गुरु. Oh good master. भाई बोलिए, अनंत जीवन कैसे पाया जा सकता है? How shall I receive eternal life? एक कहीं ना कहीं तो यीशु के बारे में सुनता और जानता है. He must know something about Jesus. इसको पता है कि अनंत जीवन यीशु ही दे सकते हैं, He know that only Jesus can give this eternal life. पर फिर भी यीशु को पूछना चाहता है, But again he is asking, रिकन्फर्म होना चाहता है he just want to reconfirm. कि अनंत जीवन क्या यीशु के पास है भी या नहीं है. He just want to confirm that whether Jesus has eternal life or not. आगे लिखा है, It's written ahead. यीशु ने उसको उत्तर दिया, And Jesus said unto him, तू आज्ञाओं को जानता है? thou knowest the commandment? क्या तू आज्ञाओं को जानता है? Though you know the commandment, उसमें लिखा है, it's written over there. हत्या ना करना, Do not commit adultery. व्यभिचार ना करना, Do not commit adultery. चोरी ना करना, Do not steal. झूठी गवाही ना Do देना, not bear false छल ना witness. करना, Defraud not. अपने माता और अपने पिता का आदर करना, Honor thy father and mother. अपने पिता और अपनी माता का आदर करना. Honor thy father and mother. उसने उससे कहा, Then Jesus, हे गुरु. he said, oh master. आज हमारा टॉपिक है अच्छा गुरु कौन है. Today's our topic is who is our good master. जोर से बोले हालेलुया. Hallelujah. The एक happiness. अच्छा गुरु जहां भी जाता है वहां पर आनंद आ जाता है. The joy is where the good guru is there. और मैं इस बात में बड़ा खुश हूं And I'm so happy with this thing. कि जब मैं राजपुरा में आया, And when I came into the मैंने आप Rajpura, सबको आनंदित देखा I saw all of you joyful. और मुझे बड़ी खुशी हुई And I was so happy कि मैं परमेश्वर का छोटा सा दास हूं. that I'm a tiny servant of God. पर इस बात से खुश हूं But I'm happy with this कि thing. आज तक मैं जिस कलीसिया में भी गया हूं, That till now I visited wherever. वहां पर आनंद का आत्मा आया है, And that the वहां पर उदासी गई है, sadness वहां पर went. खुशी का आत्मा आया है.
और इस बात में मेरी कोई काबिलियत नहीं है, And I'm क्योंकि not mighty. मैं जानता हूं कि मेरे साथ पवित्र आत्मा, मेरा गुरु मेरे साथ है, और जहां पर वो जाता है वहां पर उदासी का कोई काम नहीं यीशु मसीह के नाम This is से। not my might, but this is the might of the Holy Spirit, that wherever I go, यीशु ने the उससे Sabbath कहा, goes away. यीशु ने उससे कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, और अपने माता पिता का आदर करना। And Jesus gave him all these commandments: do not kill, do not commit adultery, and everything, and honor your father and mother. उसने कहा, He said, हे गुरु, oh master, इन सब को तो मैं अपने लड़कपन से, बचपन से ही करता आ रहा हूं। I'm following this from the very youth of mine. अब यहां पर एक सवाल है, And there is a question here. ये व्यक्ति This person प्योर सोल है, is a pure soul. ये व्यभिचार नहीं करता है, He does not commit ये adultery. चोरी नहीं करता He है, does not steal. ये झूठी गवाही नहीं He देता does है, not give false. ये अपने माता पिता का आदर करता है, He honor the parents. ये किसी के साथ छल नहीं करता He है, does not deceive क्योंकि anybody, इसने कन्फेस किया है because he confessed कि मैं बचपन से करता आ रहा हूं। that I am doing this from the youth of mine. क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप सब मेरे साथ हैं? Are you with me? ये क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को What is he saying to कि the ये सब Jesus? मैं बचपन से करता आ रहा हूं। I am following this from the youth of me. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। God just saw them with a sight and loved them. Jesus saw and loved him. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। Then Jesus, beholding him, loved him. इस वचन का क्या अर्थ हो सकता है? What is the meaning of this verse? मेरे ऊपर जो रेवलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, I am giving my revelation. पर मैं आपके विचार सुनना I चाहता हूं। want to hear from you. यीशु ने इसकी तरफ देखा, Jesus behold सब him बोलो, यीशु ने इसकी तरफ देखा और उससे प्रेम किया। and loved him. इसका क्या अर्थ है? What does it mean? वो तो यीशु मसीह के पास अनंत जीवन लेने के लिए आया He है, came to get eternal life to the Lord. और यीशु मसीह ने उसकी आंखों में देखा And Jesus behold him और उससे प्यार हो गया। and he loved him. इस दुनिया में In this world, आंखें एक ऐसी चीज हैं the eyes are the thing. जो किसी पे भी मर मिटती हैं। The eyes are the most deceiving thing in this world. हालेलुया। Hallelujah. मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? Am I right or wrong? जिस चीज को इंसान देखता है A man can see, उसे वो अच्छी लगती है, he can make it good, वो उसे पाने की कोशिश and he करता want है। to grab it. कई बार अपने बच्चों से नाराज होकर माँ बाप ये कहते हैं, Sometimes parents get angry with their children. अच्छा होता तो इस दुनिया में पैदा ही ना होता, It would be good if you haven't born. अच्छा होता तो इस दुनिया में पैदा ही ना होता। It's good if you weren't born. पर यहाँ पर क्या लिखा है? But what is written over here? यीशु को उससे प्यार हो गया, Jesus loved with him. लेकिन कैसे हुआ? But how? लिखा है कि उसने उसकी तरफ देखा। आप पढ़ सकते हैं, आपके बाइबल में भी ऐसा लिखा है? It's written in your Bible, so कहीं मेरा बाइबल अलग तो नहीं है? my Bible is different. आपके बाइबल में क्या लिखा है? What is written in your Bible? जी सिस्टर, क्या लिखा है आपके बाइबल में? What is written in your Bible? जी पढ़िए, Please read. कोई जन पढ़ दीजिए। सिस्टर आप पढ़िए। Please read for me, somebody. एक मिनट, मैं सबको बता दूं, कहीं लोग मुझे गलत ना समझें। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा। नहीं नहीं, बस प्रेम किया, यहां तक ही रहना हमने। जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने उसकी तरफ देखा Then Jesus beholded him. और उससे प्रेम किया। He loved him. इसका मतलब ये है It's mean कि प्यार आंखों से होता है। the love happened with eyes. प्यार पहले दिल से नहीं होता, The love does not happen with the heart. प्यार आंखों से होता है। It happened with eyes first. आपकी आंखें जांच लेती हैं कि अगले बंदे की सोच मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। Your eyes can discern that the person who is standing before you, his thinking is good or bad for me. बाइबल बताता है, But Bible says यीशु ने उसकी तरफ देखा God, Jesus behold him और उससे प्यार कर बैठे। and loved him. ये पहली बार नहीं हुआ है। It's not the first time. यीशु ने पतरस की तरफ भी देखा था, And Jesus beholded Peter उसको भी उससे too. प्यार हो गया था। And he fell in love with him. यीशु ने शमौन की तरफ भी He देखा fell था, in the Simon too. यीशु ने जेम्स की तरफ भी देखा था। He looked at James. वो जिसकी तरफ भी देखता है He behold anyone. वो खुद उसे प्रेम करने लग He जाता है। fell in love with him. हम बाद में उसके प्यार में गिरते हैं, We fell after that him. लेकिन यीशु पहले से ही हमारे प्यार में But गिरे हुए Jesus हैं। fell in love with us before us. बाइबल बताता है कि उसने उसकी तरफ दृष्टि करके देखा और उसे प्यार हो गया। Bible said he behold him and he जब fell in love. प्यार हो जाता है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन है आपके लिए। When you fall into love, please read, please listen me carefully. It's very important for you. जब किसी से प्यार हो जाता है, When you fell in love with somebody, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते when हैं, you start spending time with them,
बाइबल बताता है यीशु ने उसकी तरफ देखा और उससे प्यार हो गया। Bible say he beholded him and he fell in love with him. प्यार में बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं, A lot of things come out in the love. कमियां भी निकल कर आती हैं, May your deficiencies, अच्छाइयां भी निकल कर आती may your हैं। goodnesses, एक मिनट के अंदर within 1 minute, उस उत्तम गुरु ने, good master, जिसे यीशु मसीह कहा जाता है, that Jesus एक Christ, मिनट के अंदर within 1 minute, उस उत्तम गुरु ने that good master, जब उससे आंखों को देखा, when beholded their eyes, आंखों से उसको देखा, when beholded with eyes, उससे प्यार किया, fell in love, प्यार करने के बाद after love, उसकी कमी सामने आ गई, that the deficiency उसकी came कमी out. सामने आ गई। A deficiency came पता है out. उसके अंदर कमी क्या थी? What was that? पढ़िए आगे यीशु ने क्या कहा, पढ़ूं? आप मेरे साथ हैं? यीशु ने उससे क्या कहा? मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसकी कमियां और अच्छाइयां निकल कर सामने आती हैं, When you love with somebody, you can get their bad things and good things out. और यहां पर कमी निकल के सामने आई, And a bad thing came out. अच्छाई आई होती If goodness was तो come, यीशु ने कभी दूसरा जवाब नहीं देना था, and Jesus does not reply twice, लेकिन यहां पर यीशु ने एक जवाब दिया। but Jesus replied something. यीशु ने कहा, Jesus said, उस यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे क्या किया? प्रेम किया। Jesus beholded him and loved him. प्रेम करने के बाद After loving him, उससे कहा, he said to him, तुझ में एक बात की कमी है। one thing you lack. हालेलुया। Hallelujah. लगता है लाभ अंकल को सबसे पहले समझ आया ये, I think Lab uncle has understood very first. आपको नहीं आया इसलिए आपने ताली नहीं बजाई। मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट वचन दे रहा हूं। I'm teaching you a very good lesson today. हालेलुया। Hallelujah. शायद आपने कभी किसी पास्टर से ये नहीं सुना होगा, May you never heard this before, क्योंकि ये पास्टर का वचन नहीं है। because this is not the teaching of a pastor. मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा बाहर जाऊंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय When we see Jeremiah chapter 23, और उसके 30 वचन में इस तरह से लिखा है, when we see its verse 30, it's written like this. यहोवा की यह वाणी है, Therefore, behold, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध में हूं। therefore, behold, I am against the prophets, said the Lord, that steal my words, everyone from his neighbors. मैं बहुत सारे बच्चों को टोकता हूं कि किसी के स्टेटस मत लगाया करो। I poke so many things that do not put status of anyone. मैं बहुत सारे बच्चों को टोकता हूं कि किसी को कॉपी मत किया करो, I just warn them that do not copy anyone, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस चीज के खिलाफ है। because the word of God is against it. हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है, If God has given you something, आप अपना किसी को बांटते हैं, you can distribute your something. आप अपना रेवलेशन किसी को दे रहे You हैं can giving your revelation to जो आपने somebody परमेश्वर से पाया है, that you have received from तब God. आप बरकत पाते हैं। Only then you be और blessed. जो रेवलेशन आज मैं आपको बता रहा हूं, And the revelation today I'm giving you, ये किसी का चुराया हुआ this नहीं is है, not the stolen word. ये मैंने किसी प्रीचर को सुन के बनाया नहीं I है, haven't heard any preacher ये before मुझे this. स्वर्ग से मिल रहा है, I got this from heaven. इसी जगह पर मिल रहा है, I'm receiving और this. इसी जगह पर मैं आपको बांट रहा हूं। I'm giving this at this place. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि चोरी करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। Because it is against the word of God to steal something. हालेलुया। वो Hallelujah. कहता है कि मैंने उन्हें भेजा भी नहीं, God sent that, I did not send them. मैंने उन्हें बुलाया भी I नहीं, did not call them. लेकिन फिर भी वो चोरी कर करके वचनों को बोलते हैं। They steal the word and speak to the. इसी वजह से मैं उनके विरुद्ध में हूं। That's why I'm against them. आगे बढ़ेंगे। We will move forward. यीशु को इस व्यक्ति से प्यार हो गया Jesus fell in love with that और person. प्यार में कमी भी आ गई। And there is a lackness in the love. आजकल का कोई व्यक्ति होता तो उसको प्यार ही प्यार दिखना था। And that person will see only love and love. जब आप किसी के साथ प्यार करना चाहते हैं When you want to love somebody, तो आप उसकी कमियां नहीं देखते, you will not see the lackness. लेकिन मैं आपको बताना But चाहता I want हूं, to tell you, जो किसी से सच्चा प्यार but करता if you है fall in love with the truth, वो सबसे पहले उसकी कमी बताता है। very first he will tell his वो ये lackness. कहता है इससे पहले कोई तुझे और बताए, He say that if anybody before me मैं tell तुझे this, तेरी कमी बताता हूं let me tell you your कि lackness. ये तेरे अंदर कमी है। That this is your lackness. इससे पहले दुनिया इसके बारे में बोले, Let nobody talk before me you about this. लेट मी एक्सप्लेन कि तेरे अंदर ये कमी है। Let me explain this, that you have this lackness. हालेलुया। Hallelujah. आपको समझ भी आ रही है, मैं ऐसे बोली जा रहा हूँ। You understanding or I am just speaking over and over? ऑनलाइन व्यूअर्स आपको समझ आ रही है तो आमीन लिखें। Online viewers, if you are understanding, please write amen. आपको समझ आ रही है? Are you understanding? बहनें हाथों को उठाएं, आपको समझ आ रही है? Sisters, please raise up their hands. Are you understanding? मैंने बहनों को कहा था, भाइयों ने भी उठा लिए।
इतने ओवर एक्साइटेड हुए हैं, जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. सभी अपने हाथों को उठाएं। Raise up your मैं hand. यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं I proclaim in the name of कि इस Jesus वचन के रेवलेशन को समझने में वो आपकी सहायता करे। that He help you to understand this revelation. पवित्र आत्मा जो इस वक्त हमारा गुरु है, The Holy Spirit, who is our teacher now, वो आपको समझाए who make you कि understand मैं आज आपसे कौन सी स्वर्गीय बात कर रहा that हूं। I am talking about what topic today. हालेलुया। Hallelujah. यहाँ पर लिखा है, It's written over here. तब यीशु मसीह ने उससे कहा, Jesus said to him, तेरे अंदर एक कमी है भाई, there is a lackness in you. जा, Go, जो कुछ तेरे पास है whatever you have, जाकर कंगालों को बांट दे। sell and give to the poor. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. और तुझे स्वर्ग में धन प्राप्त होगा, Then you will receive your pleasures in that heaven. और आकर फिर मेरे पीछे हो ले। And then follow me. अगर तू उत्तम गुरु से बात कर रहा है, If you are talking to a good master, तुझे अनंत जीवन चाहिए है, you want eternal तो life, चला जा। then go. अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे और प्यार करूं, If you want me to love you more, चला जा, go, अपना धन कंगालों को बांट दे, sell everything you have, फिर तू उस धन को स्वर्ग में पाएगा। and you will receive that pleasures in the heavens. और फिर आकर And then came to me again, धन को कंगालों को देकर and then distribute those to the poor, फिर वापस आ and came to me again, और मेरा पीछा कर, and follow me, मुझे फॉलो कर। and follow me. हालेलुया। Hallelujah. इस बात से उस व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई। Then the luster of that man has changed after listening to this. ये वचन हमें क्या समझाना चाहता है? What this word want to teach us? मैं आपको बता रहा हूं, I'm telling you, यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से कहा, Jesus Christ told to this, अपना धन your money कंगालों को दे दे, give to the poor, तब तो उस धन को स्वर्ग में पाएगा। then you will receive in the heaven. कंगालों को धन देने का अर्थ ये नहीं कि जो भिखारी सड़क पर मांग रहे हैं उनको आप अपना धन दे दो। It does not mean that you give your everything to the poor on the street. जब आप डीप बाइबल स्टडी में जाते हैं, If you will go to the deep Bible study, बाइबल में जब कभी कंगाल वर्ड इस्तेमाल हुआ है, whenever you see the poor word in the Bible, तो उसको सुसमाचार प्रचार के साथ जोड़ा गया है। then they just organize him with the good news. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, I want to repeat again. वो कहता है कि अपना धन कंगालों को बांट दे, He said, give your money to the poor, ताकि तू उसे स्वर्ग में पाए। that you will receive again in the heaven. ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम अपना धन कंगालों को दे दें और उसे स्वर्ग में पाएं? How is this possible that we give all our money to the people? पर मैं आपको बताना चाहता हूं, But I want to say you, परमेश्वर का वचन कहता है, the word of Lord says, पवित्र बाइबल कहता है word of कि Lord परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है, says, Lord has anointed me परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया Lord है has anointed कि me मैं कंगालों के पास जाऊं so that I go to और the उन्हें poor. सुसमाचार प्रचार Give them सुनाऊं, good news. और सुसमाचार प्रचार सुनाने वाले भी उनके पास जाएं जो कंगाल हैं। And those who are bringing the good news, go to them. तो अपना धन हमें कहाँ इस्तेमाल करना है? Where to use our money? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। Give the good news to the poor. वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने वाला कौन है? Who is that good news bearer? वो मैं हो सकता हूँ, That might be वो me. प्रभु के दास हो सकते That हैं। might be servant of हमें अपना धन छोड़कर किनको देना है? कंगालों को, और कंगालों को सुसमाचार सुनाना है। हमें अपना धन कंगालों को देने के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखना है कि देने से अच्छा है कि हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं और उस धन को सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करें। We have to use our money to give the good news to the poor. It is very good for you. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और क्या लिखा है? And what is written? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, And Jesus said, जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। and where your money, their mind is there. दूसरा कारण इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि इसके पास बहुत सारी माया थी। Because the second reason, he was a very rich man. इसके पास बहुत सारा पैसा था, He has a lot of और possessions. यीशु इस बात को जानते थे, And Jesus knew it. जिसके पास पैसा है And those who have money, वो कभी मेरे पीछे नहीं चल they सकता। cannot follow me. आप मेरी बात का विश्वास करें, Please believe me. मैंने संडे को प्रीच किया था I preached on this कि Sunday. जिस दिन से मैंने पैसे के पीछे भागना बंद किया, And the day I stopped falling money, जिस दिन से मैंने लोगों के पीछे भागना and बंद the day किया, I stopped falling people, उस दिन से परमेश्वर ने मुझे आशीषित करना शुरू कर from दिया। that very day God started to bless me. उस दिन से उसने मुझे इस्तेमाल करना और ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू That कर God दिया। started to bless me and use me mightily. क्या आपको वचन का आनंद आ रहा है? Are you enjoying this word? मैं आपको बोर तो नहीं कर रहा हूं? कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यहां पर एक गुरु है जिसका नाम पवित्र आत्मा है।
You cannot be Hallelujah. bored because the Holy Spirit, who is a good teacher, is among us. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. और यहाँ पर यीशु ने उसको कहा दूसरा कारण कि अगर वो धन के साथ यीशु के पीछे चलता तो उसका मन उसके धन में रहता और वो सेवा को पूरा नहीं कर पाता। He cannot serve God with his righteousness, with his money. पर पैसा एक ऐसी चीज है But the money is a thing. जो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है। He will make you nothing. अगर ज्यादा पैसा है If you have more money, तो व्यक्ति गलत कामों में चला he जाएगा। will, the person will indulge in bad अगर things. कम पैसा है If you have less money, तो वो परमेश्वर को कोसता रहेगा। then he will just keep cursing the God. प्रभु मेरे नाल ही इदां करना सी। Oh, Lord, why you are doing प्रभु this? दुनिया कोल इन्ना पैसा गड्डी इधर नु छू करके लंघ जाती है, गड्डी इधरों छू करके लंघ Oh, जाती है। Lord, Lord, people have a lot of cars, then why do this thing happen with me? मैं आपको एक पते की बात बताना चाहता हूँ, Let me tell you one ये thing. आपके लिए है। This is for you. जिस दिन आपके अंदर से पैसे की लालसा खत्म हो जाएगी उस दिन पैसा आपको फॉलो करना शुरू कर देगा। From the day you will lose all the hunger for money, then money will begin to follow you. पैसे की लालसा खत्म करने का अर्थ ये है कि आप फुली परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाएं। Diminishing the hunger of money means you are fully dependent on God. फुली परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं। You are dependent fully on God. अपने आप को अमीर बनाने के रास्ते खुद ना बनाएं। Do not make your ways to be rich. कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, मुझे यहां से पैसे मिल जाएं, मुझे वहां से पैसे मिल जाएं, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां तेरा धन रहेगा वहीं तेरा मन रहेगा। इसलिए जब तक आपको 1 करोड़ संभालने की अकल नहीं आती तब तक परमेश्वर आपको 1 करोड़ नहीं देगा। जब तक आप उसके साथ 25,000 में वफादार नहीं है तो आप 25 करोड़ में भी नहीं है। पहले वो आपको 25,000 में वफादार बनाएगा, उसके बाद वो आपको 25 करोड़ भी देगा, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरा बेटा थोड़े में भी वफादार है और अब ये बहुत में भी वफादार रहने When वाला you है। be honest with your little things, He will make you more rich, so that you be more honest with the big things. अपनी जिंदगी पर अफसोस ना करें। Do not mourn of your life. मैं आज कलीसिया को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने आया हूँ। I am here to teach a very important lesson to my congregation. अपने मुंह के शब्दों को सही करें। Just make good your word of your mouth. मैंने अपने चर्च को बहुत बरकत वाला चर्च माना है। I consider my church a blessed church. रमन हंस मिनिस्ट्री चर्च ऑफ ऑल नेशन बहुत आशीषों वाला चर्च A है, very blessed church of our Ramanand's ministry, the church of all nations. पर इसमें मैंने एक कमी को पाया है। But I have sought one क्या lackness. आप उस कमी को जानना चाहते हैं? Do you want to know that lackness? यदि मैं आपको देखता हूँ When I saw you और मुझे आपसे प्यार है and when I loved तो you, मुझे जायज है कि मैं आपको कमी बताऊं। it's good for me if I tell you your lackness. हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोले आमीन। Amen. और वो कमी ये है And that lackness is that कि आप अननेसेसरी अपने लिए गलत बातों को बोलते हैं। you just keep uttering unnecessary things for you. आप प्रतिदिन अपनी जिंदगी के ऊपर ध्यान दें, Just keep your eyes on your life every day. रोजाना जिंदगी पर ध्यान दें। On every day. जब आप सुबह उठते हैं When you walk up in the morning, सबसे पहला वर्ड आपके मुंह से क्या निकलता the है? first thing come out of your mouth is, कहीं ऐसा तो नहीं होता है कुड़ी चाय लेके आ? you are just ordering tea. कहीं ऐसा तो नहीं होता कि हम कुछ और अपने मुंह से निकालते हैं? Is it possible that we are uttering something else? पहला वर्ड आपका परमेश्वर के धन्यवाद का वर्ड होना The चाहिए first word of the day should be the thanksgiving to कि your प्रभु Lord. यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूं, करती हूं कि तूने मुझे आज एक अच्छी सुबह दी है कि मैं जीवित उठा हूं। Oh Lord, that you have given me the good day that I rose up again. हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, And second thing I want to tell अपने you, दिन को शुरू करने से पहले प्रार्थना शुरू करें before starting your days, और do a अपने prayer शब्दों पर कंट्रोल करें। and control on your words. बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कहते हैं मर जाना टह जाना। And a lot of people using bad words to their kids. आप अपने बच्चों पर अगर गलत शब्द बोलते हैं तो वो जरूर पूरे होंगे। If you will speak bad words to your word, they will be accomplished. अगर आप अपने ऊपर बुरे शब्दों को बोलते हैं तो वो जरूर पूरे होंगे। And if you will speak yourself bad words, they will accomplish too. मैं आपको एक बात बताना चाहता I हूँ, want to tell you one ये thing. बहुत जरूरी बात है। It's very important thing. कितने लोग इस बात को जानते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं? How many of you know that walls have ears too? अपने हाथों को उठाएं Raise your hand. जिनको पता है कि दीवारों के भी कान होते Those हैं। who know that walls have ears too. कैसे? How? आपको कैसे पता है कि दीवारों के कान होते How do हैं? you know that walls have ears? हाँ जी, आपको कैसे पता है कि दीवारों के कान होते हैं? How do you know?
पर मैं आपको बताना चाहता But I हूँ want to tell ये you, वर्ड किसी वजह से बना है। this word is made something about कुछ that. लोग ऐसा सोचते होंगे Some कि people कोई हमारी बातों को सुन लेता है, उसको कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। Some people think that somebody is listening to us. That's why they say that wall have ears. कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि शायद पास्टर जी हमें ये बता रहे हैं कि जो लोगों के साथ हम जिन लोगों के साथ हम बातें करते हैं हम उनसे बातें ना करें क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। May some people think that I am saying to you for this kind that nothing, no share with anything. पर मैं आपको बताना चाहता But I हूँ want to tell you one thing. हवा को किसने बनाया है? Who made the? मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि दीवारों के कान भी होते हैं। I want to tell you that even walls have ears. हवा को किसने बनाया? Who made the Eve? मैं हवा वो वाली नहीं कह रहा, ईव नहीं कह रहा, मैं एयर की बात कर रहा हूँ। Who made the airs? जिस हवा को परमेश्वर ने बनाया The God who made the air. उसने कैसे बनाया? How he made him? वर्ड से बनाया। With the word. जोर से बोले, शब्द से बनाया। With the word. परमेश्वर ने हवा को किससे बनाया? शब्द से बनाया। परमेश्वर ने पानी को किससे बनाया? How God made the water? With शब्द से बनाया। the word. आप इस बात को भी जानिए कि परमेश्वर ने पेड़ पौधों को भी शब्द से बनाया। You must know that God created everything with word. और शब्द में क्या है? And what is in the वर्ड word? में क्या है? What is in the word? वचन में क्या है? What is in the word? लाइफ है। मैं आपको बता रहा हूं दीवारों के भी कान होते हैं और परमेश्वर ने हवा को बनाया, परमेश्वर ने पानी को बनाया, परमेश्वर ने पेड़ों को बनाया, दरख्तों को बनाया और सब चीजों को वर्ड से बनाया, शब्द से बनाया, वचन से बनाया। और वचन में जीवन है और अगर वचन में जीवन है तो जितनी प्रकृति है, जितना नेचर है, ये आपकी आवाज को सुनता है। अगर इनमें जीवन है तो ये आपकी बातों को सुनता है और आपकी सब बातों को परमेश्वर तक पहुंचाता है। एक मैसेज देता है कि आज आपका बेटा वह विचार कर रहा है, एक मैसेज देता है कि आज हवा में ये बातें हो रही हैं, आज पानी में ये बातें हो रही हैं, आज पेड़ों के नीचे ये बातें हो रही हैं। बाइबल इसीलिए कहता है कि 7 कुठड़ियों में भी बंद अगर तूने कोई पाप किया है तभी मैं तुझे देखता हूं, क्योंकि वहां पर अगर कोई नहीं जा सकता तो हवा जा सकती है, वहां पर अगर कोई नहीं जा सकता तो परमेश्वर की बनाई हुई वस्तुएं वहां पर मौजूद है। चर्च, कोई भी उससे छुप नहीं सकता, कोई भी अपने आप को उससे परे नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से बातें किया करें, अपने मुंह पर कंट्रोल रखा करें, सही बोला करें, क्योंकि हवा भी आपकी बात को सुनती है। हालेलुया। पानी भी आपकी बात को सुनता है। जिन पेड़ों के नीचे आप खड़े होते हैं वो पेड़ भी आपकी बात को सुनते हैं। प्रतिदिन अपने आप के लिए आशीष बोले, Just proclaim good things and blessing over you. हर रोज अपने लिए आशीष बोले। Every day proclaim blessings अगर for कोई you. चंगा नहीं हो रहा, If somebody is not receiving healing, रोज अपने सर पर हाथ रख के कहें मैं यीशु मसीह के नाम से चंगा हो चुका हूं। proclaim this thing that I am healed in the name of Jesus. अगर कोई गरीब है रोज कहे मैं यीशु मसीह के नाम से अमीर बन चुका If a हूं, poor, proclaim that I am क्योंकि rich. आपका एक वर्ड, आपका एक कन्फेशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। चर्च, Because your one word can turn the table for you. अपने मसीही लाइफ को शुरू करने के पहले दिन को याद करें। Just imagine for the first day of your Christian life. जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था, उस दिन से लेकर अब तक की जिंदगी को याद करें। From the day of baptism until today, just rethink this life. अब तक आपने अपने लिए कितनी बुरी बातों को बोला और सोचा होगा। Till today, how many times you have proclaimed bad things upon you? और कसूर पास्टर का, And you are blaming pastor. कसूर कलीसिया का, And you are blaming church. कसूर सेवादारों का, And you are blaming servants. किसी का कोई कसूर नहीं है। Nobody is. आप अपने लिए आशीष भी हैं, आप अपने लिए श्राप भी हैं। You are blessing for yourself and you are curse for yourself. आज यीशु मसीह की हुजूरी में Today in the presence of Lord, मेरे साथ एक वायदा करें promise with me कि हम अपने लिए बरकत बोलेंगे, that we will proclaim only blessing. हम अपने लिए आशीष बोलेंगे। We will proclaim only blessing for हम ourselves. कभी भी नहीं कहेंगे कि मेरे लिए ये नहीं हो सकता We है। will never say that this is not possible for me. मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे लिए ये नहीं हो सकता I है। never say that this is impossible for me. मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरा यीशु मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। Every time I say that if my Jesus is with अगर me, मेरा गुरु मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ हो if सकता my है। teacher is with me, everything is possible. अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ हो If सकता है। Holy Spirit is with me, then everything is possible. बाइबल बताता है यूहन्ना की पुस्तक उसका 3:1 में, Bible says in the book of John, is chapter 3, verse 1. यहूद फरीसियों का एक सरदार था जिसका नाम निकोदेमस था। There is a master Nicodemus who was the king, who was the
ruler of the. वो बहुत हाई पोजीशन पे था। He was at the high position. निकोदेमस बहुत हाई पोजीशन पे था। Nicodemus was at the high वो position. एक धर्म ग्रंथी था। He was a preacher. वो इस अमीर व्यक्ति की तरह यीशु के पास आया। He came to Jesus like this उसने rich man. भी आकर यीशु से कहा, हे गुरु। He asked and tell Jesus, "Oh उसने कहा, master." हे रब्बी। He said, "Oh Rabbi, रबई oh Rabbi, एक खास व्यक्ति जो एक खास मकसद के लिए चुना गया हो। who chosen for a purpose." हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. आप कभी भी आम व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते। You never want to talk with any ordinary man. सीएम को मिलना चाहते हैं, You want to meet CM? कैबिनेट मिनिस्टर को मिलना You चाहते want to हैं, meet cabinet minister? एमएलए को मिलना चाहते You हैं, want to meet MLA? हमारा काम हो जाएगा। That's my work ought to do. खास व्यक्ति से मिलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। If we will meet an important person, our work will be done. ये व्यक्ति शरा का सिखाने वाला था, यहूदियों फरीसियों का सरदार था। This person was the teacher of the law, and he was the master of the Judas and their preachers. ये एक गुरु होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। Being a teacher, he came to Jesus. खुद एक गुरु है और इसको गुरु की जरूरत है। He was a teacher himself, but he needed a guru. और आकर यीशु से क्या पूछता है? And what he told to Jesus, मैं नया जन्म कैसे पाऊं? "How can I reborn?" प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Jesus replied, पुराने ऐदनामे में तूने क्या पढ़ा है? what you have learned in the law. उसने कहा कि जो कुछ पुराने ऐदनामे में लिखा है वो मैं सब करता हूँ। He is saying that I am following everything what is in the law. तो यीशु ने उससे कहा, तू वैसा ही कर तो तू अनंत जीवन पाएगा। And Jesus said, do the same thing, you will what eternal life. पर फिर उसके मन में एक क्वेश्चन अटका हुआ था And then again one question, कि मैं नया जन्म कैसे पाऊं? how can I achieve the eternal life? यीशु ने उससे कहा, Jesus said to जब him, तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे नया जन्म नहीं पा सकता if है। somebody is not born with the spirit and the water, cannot be reborn. जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे अनंत जीवन नहीं पा सकता है। If somebody is not born from the water and the Holy Spirit, cannot reborn. उसने कहा, क्या मनुष्य बूढ़ा हो जाए और फिर से अपनी माँ के पेट में जाए, दोबारा पैदा हो, तब उसका नया जन्म होता है? He said, is it possible for me to go again into the womb of my mother and took again birth? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नहीं, Jesus said, no. जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, Until a person is not getting birth from जल the और आत्मा से ना जन्मे, water and the Holy Spirit, तब तक वो नया नहीं हो until सकता। that he is not new. तब तक वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर Till that सकता। time he तब cannot तक वो enter. स्वर्ग में नहीं जा He सकता। cannot enter into the heaven. बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मा पाया, बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थनाएं की, लेकिन अभी तक भी नए नहीं हुए। A lot of people receive the Holy Spirit, the language, but they still not entering into the Holy Spirit. अभी तक नए नहीं हुए हैं। They are not new yet. नए होना अपने आप को नहलाना नहीं है। It's not this नए thing. नए होना नए कपड़े पहनना नहीं It's है, not thing that you just wear a new garment. पर नए होना It's being new अपने जीवन को नया बनाना to है। change your life. नए होना Being new एक सच्चे गुरु के करैक्टर को अपने साथ रखने के लिए बहुत ही लाभदायक है। it's very important that if you are abiding with your good teacher, it's very नया होना, मैं फिर से कह रहा हूं, नया होना, प्योर होना, उत्तम होना तब होगा जब आपका गुरु आपके साथ साथ चलेगा। It's only possible if your teacher is with you, you can be pure, you can be new. मैं इस टॉपिक को 3 घंटे और प्रीच कर सकता I हूं। can preach this topic 3 hours more. करूं? May I? थक गए सारे, थक गए सारे। नहीं Everybody नहीं is नहीं tired. नहीं, ਹੁਣ नहीं, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ थक गए हो। Now you are tired. लेकिन आपको बताना चाहता हूं, But I want to tell you one thing. अगर आपने आज कुछ सीखा है But if you have learned something today, तो आप उसे अपनी जिंदगी में लागू भी करें। just apply that thing in your life. पहली बात मुझे बताएं First thing, tell me, कि आपका उत्तम गुरु कौन है? who is your good master? यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। Jesus Christ and the Holy जोर Spirit. से बोलें, Speak loudly. यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। Jesus Christ and the Holy Spirit. दूसरी बात आपने सीखी है Second thing that you have learned, कि जब आपको किसी से प्यार होता है when you fell in love with somebody, तो उसकी कमियां खुद ब खुद सामने आ जाती हैं।
that the lackness of that person और comes अगर out. आप उन कमियों को नहीं बताते हैं But if you not clarify that lacknesses, तो आपका प्यार झूठा है। then your love is fake. और यीशु मसीह जब किसी के जीवन में आता है And when Jesus Christ comes into the life, तो सबसे पहले वो उसकी कमियों को रिवील करता the है, very first thing he revealed the lackness of that सबसे person. पहले उसकी कमजोरियों को सामने लाता है, He revealed the weaknesses of that person. उसके बाद वो व्यक्ति नया बन जाता है। After that, that person become new. हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोले हालेलुया। Hallelujah. मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखा दी हैं I have taught you so many things. और मेरा आज का टॉपिक था And my today topic कि was, हमारा अच्छा गुरु कौन है। who is our good master? हमारा अच्छा गुरु Our good master, प्रभु यीशु मसीह Jesus और Christ पवित्र आत्मा है। and Holy Spirit. प्रभु यीशु मसीह इसलिए Jesus Christ, that's why. क्योंकि इस दुनिया के गुरु सिर्फ कुछ समय तक आपके साथ होते हैं, Because the worldly teachers are temporarily with you. लेकिन आपके गुरु ने, But your प्रभु यीशु मसीह ने, Jesus Christ, मेरे गुरु ने, my teacher, प्रभु यीशु मसीह ने Jesus Christ, मेरी सारी लानतों को अपने ऊपर ले लिया। he has put all my curses on himself. उसने मेरे पापों के लिए कोड़ों की मार खाई, He just वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। वो सिर्फ मेरे लिए हुआ he beaten and crucified and rose up from the dead for me. और यहीं तक खत्म नहीं हुआ है। And this does not finish here. उसने मुझसे वायदा किया कि अब मैं बादलों पर दोबारा भी आऊंगा He said and promised me that I और will मैं come सिर्फ again. तुझे लेने के लिए I आऊंगा, will come to get you. मैं तेरे लिए I आऊंगा, will come to see you. क्योंकि इस दुनिया के गुरु इनकम्प्लीट हो सकते हैं, Because it might possible that the teacher of this world are incomplete. लेकिन मैं स्वर्गीय गुरु हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं इनकम्प्लीट नहीं हूं, मैं कंप्लीट हूं। और जो वायदा मैंने तुम्हें लेकर जाने का किया है, मैं उसे पूरा किए बिना नहीं रहूंगा। बहुत जल्दी मैं आकाश के बादलों पर आऊंगा और अपनी चुनी हुई कलीसिया को, अपने प्यारे प्यारे लोगों को, अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को, अपने प्यारे प्यारे बेटों को अपने साथ आसमानी बादशाहियों में लेकर जाऊंगा। खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और परमेश्वर की महिमा करें कलीसिया, और कहें कि प्रभु सचमुच आप हमारे उत्तम गुरु हैं। कहें प्रभु यीशु सचमुच आप हमारे वो परमेश्वर हैं जो हमसे वायदा करते हैं कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। अपने आप को ऐसा बना लें चर्च कि जब कोई आपसे मिले, आपसे हाथ मिलाए, वो कहे कि ये एक अच्छे गुरु के लड़ लगे हुए हैं, ये एक अच्छे गुरु को मानने वाले लोग हैं। जब आपसे कोई मिले तो वो कहे कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। आप में कोई भी किसी तरह का भी पाप ना रहे हो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सब जन और अपने मुंह को खोलें और प्रार्थना करें। सब कहें प्रभु यीशु मसीह आज हम आपको पुकारते हैं, आज हम आपकी पवित्र हजूरी में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, आज हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं। आप आसमानी बादशाहियों को छोड़कर हमारे बीच में आ गए। आपने हमारी लानतों को ले लिया, आपने हमारी परेशानियों को ले लिया, आपने हमारी कमजोरियों को ले लिया, आपने हमें नया जीवन दिया, आपने हमें नई जिंदगी दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्यारे परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से एक एक के ऊपर आपके पवित्र आत्मा की मोहर को लगा देता हूँ, एक एक के ऊपर आपके पवित्र आत्मा की छाप को लगा देता हूँ। जो आज का वचन इन्होंने सुना है कि हमारे पास एक उत्तम गुरु है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, और वो हमारी कमियों को निकालने में सक्षम है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800